Hello students, today I am going to explain you a passage for your oral examination. I am going to ask you questions from this passage. Okay, now let's read it. At a casual glance, no one would think that the two animals were even remotely related. The black-footed mongoose, although still only a baby, measured 2 feet in length and stood about 8 inches in height. She had a blunt, rather dog-like face with dark, round and somewhat protuberant eyes. Her body, head and tail were rich creamy white, while her slender leg were rich brown and was almost black. She was sleek, sinuous and civet and reminded me of a soft-skinned Parisian belle Annie clad in nothing more than 2 pairs of black, slick stockings. In contrast, the pygmy mongoose looked anything but Parisian. He measured, including tail, about 10 inches in length. It had a tiny, sharply pointed face with a small circular pink nose and a pair of small glittering cherry-colored eyes. The fur, which was rather long and thick, was a deep chocolate brown and with a faint ginger tint here and there. Tiki, who was very much Grandam peered out of her cage at the newcomer with something akin to horror on her face, watching it fascinated as it shrieked and grumbled over its meat. Tiki was herself a very dainty, fastidious feeder and would never have dreamed of behaving in this uncouth way, yelling and screaming with your mouth full and generally carrying on as though you had never had a square meal in your life. She watched the pygmy for the moment or so and then gave a sniff of scorn, turned round gently 2 or 3 times and then lay down and went to sleep. So, in this comprehension, what the author wants to, he or she is comparing one animal with another, which what happens in a zoo. Tiki was a animal who came to zoo. It was a newcomer एंड उसको देखकर ऑथर को क्या होता है, उसको मंगूस की याद आ जाती है. वो दोनों को कंपेयर करता है कि वो मंगूस जो था क्रीम वाइट कलर का था, सॉफ्ट स्किन था और वहाँ पे रिच ब्राउन एंड दैट वॉज ऑलमोस्ट ब्लैक. शी वॉज स्किल सीनियस एंड रिमेंड मी टू सॉफ्ट स्किन. उसको किसकी याद आई? सॉफ्ट स्किन पेरिसियन बेल एमी करके एनिमल. और उसका कैसा था? वो स्मॉल था विथ स्मॉल सर्कुलर पिंक नोज. उसकी स्मॉल सी पिंक कलर की नोज थी. ग्लिटरिंग आइज मीन्स चमकती हुई आँखें थी. द फर विच वॉज रैदर लॉन्ग. उसके फर जो थे, उसके हेयर्स जो थे लॉन्ग थे, थिक थे एंड वॉज डीप चॉकलेट ब्राउन विथ अ फेंट जिंजर टिंग हियर एंड देयर. और वो उनको लेकर इधर उधर ब्राउन और चॉकलेट टिंग थे उसके और इधर उधर वो सब घूमती रहती थी. तो यहाँ पर जो टिक्की है वो एक न्यू कमर है जू में और वो वहाँ पर आई है, थोड़ी सी डरी हुई है और इधर उधर देख रही है. उसका जो खाना रखा हुआ है मीट, उसको वो देख रही है, उसको वो खाना भी है. और
धीरे धीरे वो बिहेविंग इन दस अनकाउंट yelling and screaming with your mouth full of generally carrying on as though you had never had a square meal। और फिर वो डरते डरते आती है, खाती है और 4-5 राउंड घूमती है और जाकर सो जाती है। सो इट इज़ आवर कॉम्प्रीहेंशन एंड इट कंटेन्स सम क्वेश्चंस, राइट, लाइक फाइंड words in the passage which mean the same as the word given in the given below। means आपको ये words के synonym बताने हैं। कौन से? distinctly, sparkling, fear और delicate के। then answer briefly and second one is rewrite the following sentence using plural form। plural form तो आपको पता ही है कि mongoose का plural form क्या होगा, her, फिर it, फेस, नोज, पेयर्स, इनके प्लूरल फॉर्म क्या होंगे? प्लूरल तो आपने पढ़ा ही है। देन आंसर ब्रीफली, आंसर ब्रीफली ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर करने हैं। व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द ब्लैक फुटेड mongoose? Each and every information is given in this comprehension in this para। you need to search it and write it over here। write words tell you which word tells you that she was the thinner side। कौन सा वर्ड उसको डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है, डिस्क्राइब द पिग्मी mongoose फर। पिग्मी mongoose का फर कैसा था वो आपको डिस्क्राइब करना है। देन स्टेट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ टिकी। टिकी की 2 क्वालिटीज आपको बतानी है। व्हाट वाज द टिकीज रिएक्शन व्हेन शी सॉ अ न्यू कमर्स? जब उसने न्यू कमर्स को देखा, टिक्की जो है वो न्यू कमर्स को जब उसने देखा वहाँ पे, तो उसको उसका रिएक्शन क्या था? ओके, ब्लैक फुटेड mongoose, जो आपने mongoose के बारे में यहाँ पे पढ़ा है उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं वो फिल करने हैं आपको। ओके, सो हियर आर द आंसर्स ऑफ योर ओन क्वेश्चंस, यू कैन लर्न इट। ओके, तो डिस्टिंक्टली, रिमोटली, देन स्पार्कलिंग, glittering, fear, horror, delicate, dignity। then answers of the questions are in contrast the pygmy mongoose looked anything but persony। वो कैसे जैसी किसके जैसी लग रही थी? persony जैसी। their body और creamy white, उनकी बॉडी कैसी है? creamy white है। they had tiny sharply pointed face with small circular pink noses and pairs of small glittering cherry colored eyes। answer of third question। then क्वेश्चन नंबर 3, द ब्लैक फुटेड mongoose मेजर 2 feet in a length। मीन्स वो जो ब्लैक फुटेड mongoose है वो कितने मेजर का है? 2 feet का है। और शी हैड अ ब्लंट डॉग लाइक फेस, उसका फेस कैसा है? डॉग के जैसा फेस है। विद डार्क राउंड एंड प्रोपोडरेंट आइज, और उसकी आइज डार्क ब्राउन और प्रोटोडरेंट है। द वर्ड स्लिक इंडिकेट्स दैट शी वॉज अ थिनर साइड। उस कौन सा वर्ड इंडिकेट करता है? स्लिक वर्ड। द पिग्मी mongoose फर वॉज लॉन्ग एंड थिक, उसके पिग्मी mongoose के फर कैसे थे? लॉन्ग और थिक थे। इट वॉज डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर, और उसके फर का कलर था डीप चॉकलेट ब्राउन एंड विथ अ फेंट जिंजर टिंगी हेयर एंड देयर, और उसका फेंट जिंजर टिंग था। टिकी वॉज अ फैसिडियस फीडर एंड वेल बिहेव्ड mongoose। वो कैसी थी? उसकी क्वालिटीज़ कैसी थी? वो mongoose की एक मतलब फैसिडियस फीडर थी, यानी कि वो ज़्यादा खाने को झपटना या वो मैनर में रहती थी और वेल बिहेव थी। टिकी वॉज समवॉट हॉरिफाइड एट द अनकाउंट बिहेवियर ऑफ द न्यू कमर्स, और वो वहाँ पे पहले से रहती थी और जो भी नए वहाँ पे न्यू कमर्स थे उनसे थोड़ा उसको डर लगता था। शी वॉन्टेड दैम इनिशियली देन गेव अ स्निफ ऑफ स्क्रॉन। शी टर्न राउंड इगेंटली 2 or 3 times एंड देन ले डाउन एंड वेंट टू स्लीप। फिर उसने वो क्या करती है कि अलग रहती थी और सबसे 2-3 राउंड लेकर वहाँ वो जाकर सो गई थी। एंड हियर आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, क्रीमी वाइट, स्लेंडर, रिच ब्राउन, स्लिक लेग्स,
पेनिसेंस, कॉटिंग, स्टॉकिंग्स, ये सब आपके फिलअप्स के आंसर हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस you are supposed to prepare for your oral examination. Okay, all the best students. Bye bye.